now today we have completed error detection. So now our issue is about error correction. अगर error correct करना है तो क्या क्या बात है. Generally error correction is much more complicated than error detection. क्यों? क्योंकि उसका deterministic nature of the errors. क्योंकि हमको पता नहीं है एरर कहाँ पे होगा और किस लोकेशन में होगा. सो इसलिए उस लोकेशंस को पता लगाना पड़ता है for the correction, and that's why error correction is much more difficult. So then generally we go for two basic approaches. One is the backward error correction, another is the forward error correction. Backward error correction में क्या होता है कि एरर हो चुका है, अब रिसीवर जो है उसको ठीक नहीं करना चाहता है और that is कर सकता है. It has not equipped with the correcting system. So it asks the sender that please resend the frame or the message. उसको फिर से आप भेजिए. तो ये एक अलग पॉलिसी है and that is implemented using automatic repeat request ARQ. इस पे देखेंगे हम लोग. We are having different types of ARQs. Another is forward error correction. कि हाँ receiver, now the receiver has the circuitry or the mechanism through which it can correct the errors and find out the locations from which the error at which the error has occurred, and उस लोकेशन को पता लगा के वो रेफर कर सकता है कि एक्चुअल कोड वर्ड क्या सेंड किया गया होगा. So for again to correct the errors, it uses the redundant bits to the data words. वो उसको ऐड करता है, सेंडर ऐड करके भेजता है, and there is a relationship between the redundant bits and the what data words. So that the using the bits we can find out, the receiver can find out the exact location of the errors. So generally हम लोग ज्यादा भेजते हैं. So it is generally needed. अगर ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स हम भेज रहे हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ redundant बिट्स भी हमें ऐड करना पड़ेगा. मतलब फ्रेम का साइज जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा फ्रेम साइज होगा, उसको करेक्ट करने के लिए we need more number of redundant bits. So एक रिलेशनशिप को स्थापित करना पड़ेगा एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन के बीच में, ताकि एरर करेक्शन में redundant bits एंड डेटा वर्ड्स के बीच में, ताकि रिलेट हो सके कि कौन सा बिट्स चेंज हो चुका है. सो जब हम उसको बांटते हैं, दैट इज के बिट्स को ग्रुप करते हैं इन डेटा वर्ड्स एंड कोड वर्ड्स. सो वी आर हैविंग के नंबर ऑफ ग्रुप्स. के बिट्स का हम ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप्स को हम मैप करते हैं n बिट्स उसमें n minus k redundant bits ऐड करते हैं, and that becomes a code word of n bits. So if we have k groups, that k bits groups having k bits, then we will have 2 to the power k data words. And उसमें अगर 2 या 3 बिट एक्स्ट्रा बिट अगर ऐड होता है, n minus k बिट्स अगर ऐड होता है, so that becomes 2 to the power n code words. अब हमको चाहिए इतना ही भेजना, लेकिन हमको more number of bits is available, that is more number of code word patterns is available. So not all data words are mapped to the code words. कहने का मतलब इतना ही है. सारा डेटा वर्ड्स जो है वो सारे कोड वर्ड से मैप नहीं करता, because some of the code words are never being used. And in this way we get two categories of code word. That is, one is what is called as, इसको हम लोग एक valid code word कहते हैं, and another is called invalid code words. So what are valid code words? Those code words which directly maps to the data words. जो अलग अलग पैटर्न का हम डेटा वर्ड्स बनाए हैं, उस डेटा वर्ड से जो कोड वर्ड मैच करता है, मतलब based on the data word we create the code word, and the matching, when the matching is being established, that is called a valid code word. If a matching is not, मतलब just डेटा वर्ड में हम redundant bits ऐड करके जो कोड वर्ड्स को हम पा रहे हैं, those set of code words are called the valid code words. और बाकी जो सेट्स हैं, those code words are called the invalid code words. So whenever a bit that is an error occurs, whether a single bit or it is a error or a burst error, so it generally happens, यही होता है कि वो invalid code word भी जोन में चला जाता है. वहां से हमको उसको रिलेट करना होता है कि ये जो invalid कोड हमें मिला है, एक्चुअली ये एरर कोड वर्ड है, इसमें कुछ एरर है, तो इसमें कौन सा लोकेशन में एरर हुआ है और अनुमान लगाना पड़ता है. दैट इज, इट इज द वर्क ऑफ द रिसीवर, दैट इज द सर्किटरी और द सॉफ्टवेयर ऑफ द रिसीवर टू करेक्ट दैट बिट कि कौन सा एक्चुअल कोड वर्ड से ये आया होगा, बिकॉज वी आर हैविंग टू द पावर के कोड वर्ड्स, के डेटा वर्ड्स. किस डेटा वर्ड से इसका एक्चुअल डेटा वर्ड क्या है. कोड वर्ड्स हमारे पास जो रिसीवर जो रिसीव करता है, उसमें कुछ बिट्स अगर चेंज कर गए हैं, मे बी इट इज
सिंगल बिट और बर्स्ट एरर, तो उसके आधार पे वो एस्टिमेट करेगा, चेक करेगा पहले कि वो एरर है कि नहीं, दूसरे बार उसको एस्टिमेट करेगा कि ये जो कोडवर्ड गलत कोडवर्ड हमें मिला है ये किस डेटा वर्ड को रिलेट करता है, मतलब ये डेटा वर्ड क्या होता होगा, तो वो बिट लेवल पे इसको चेक करता है। ठीक है, देयर इज नो वन टू वन मैपिंग बिटवीन द, ऐसा है कि इस के बिट्स के लिए ऐसा कोडवर्ड बनना चाहिए, मतलब ऐसा ही हमेशा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। सो इट इज बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द बिट्स ऑफ द कोडवर्ड। उसी कोडवर्ड जब हम बनाते हैं उसमें कुछ पार्ट जो है डेटा वर्ड रहता है और कुछ पार्ट जो है वो हमारा रिडंडेंट बिट्स रहता है, तो उनके जो स्थान है उस स्थान के हम लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, एंड यूजिंग दैट वी relate them and we estimate that what could have been the valid code word, जो actual code word जो send हुआ था वो क्या है, and in this way the correction is being done. So for that we need a relationship that is called Hamming distance. So Richard W. Hamming इसको नाम दिए हैं, and ये define करता है कि दो code word के विषय में, दो code word में we are having some distance. The Hamming distance between two words is the number of differences between corresponding bits. So इसको इस तरह से डिनोट करते हैं कि अगर x एक कोड वर्ड है, y एक कोड वर्ड है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, that is what is the difference, number of difference. So where x and y are the size of the code words. So मान लेते हैं अगर ये 7 है और ये 4 है और ये 7 है, so what is the Hamming distance between the code words? So the Hamming distance can be found by XORing the two code words and counting the number of ones. यहाँ पे दो कोड वर्ड हैं 000 and 011. इसका अगर XOR करते हैं तो 011 आता है और इनमें कितना वन चेंज किया है, that is 2 ones, so the distance is 2. Again in this case यहाँ पे दो कोड वर्ड्स 5 बिट का यूज किया गया है, one is x another is y. इस पे कितने का अंतर है, तो इसका अगर XOR करते हैं तो 3 ones आता है, so the distance is 3. So जितना XOR करने के बाद जितना नंबर ऑफ वंस आ जा रहा है, that is the Hamming distance, that is called the Hamming distance between the code words. अब एरर के साथ इसका क्या संबंध है, तो we use Hamming distance for error detection and correction. इसी डिस्टेंस को हम लोग यूज करते हैं डिटेक्शन और करेक्शन में. So the minimum Hamming distance is the smallest possible distance between all possible pairs in a set of code words. अब यहाँ पे 4 डेटा वर्ड है और इस 4 डेटा वर्ड का ये कोड वर्ड बन रहा है. सो 4 डेटा वर्ड है 2 बिट का है, तो यहाँ पे 2 बिट का 4 डेटा वर्ड बनेगा, लेकिन हम लोग इसमें 3 बिट ऐड कर रहे हैं, रिडंडेंट बिट्स ऐड कर रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग द कोड वर्ड. सो इट इज हैविंग 2 to the power 5 पॉसिबिलिटीज, दैट इज 32 पॉसिबिलिटीज, लेकिन उसमें से 5 को ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड हियर इट्स दैट कि वो जो 32 में से जो 5 यूज कर रहे हैं, दैट इज आवर वैलिड कोड वर्ड्स, और वो जो 27 code words है, those are the invalid set of code words. So once this is done, so Hamming distance हम calculate करते हैं. So इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, इसके साथ थर्ड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ सेकंड के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, फिर थर्ड के साथ फोर्थ. वही यहाँ पे किया गया है. That is first is map measured with the in relation to the second, third and fourth. ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ. सो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्टेंस आ रहा है. सब इन सब में जो मिनिमम डिस्टेंस है, सो इट इज रिपीटेड हियर, इट शुड हैपन 3. यहाँ पे 3 है, मिनिमम डिस्टेंस हियर इज 3. ये गलत है, कॉपीड हियर, दैट्स व्हाई. सो मिनिमम डिस्टेंस हियर इज 3. तो यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस हमें मिल रहा है 3, 4, यही डिस्टेंस है. इन सब में मिनिमम जो है वो 3. तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, दैट इज द distance that we use for error correction and error detection. So क्या क्या पैरामीटर्स मिला, तो हमें एक मिला कोड वर्ड साइज, दूसरा है डेटा वर्ड साइज, अनदर इज द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस. तो ये तीनों पैरामीटर्स के आधार पे जो एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन दोनों एट इज फॉरवर्ड साइड में किया जाता है, एट द रिसीवर साइड. सो अगर एरर डिटेक्शन करना है तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए. A set of code word is said to be error detecting if and only if the minimum distance between the code word is 2. 2 ही होना चाहिए. अगर 2 से कम हो रहा है then it is not good. तो ये minimum distance होना चाहिए. That is the 2 is fixed. अगर 2 distance है, more than 2 अगर है it is good, but if it is 2 तो ये डिटेक्ट कर सकता है.
but we are concerned with error correction. So a set of code words क्या है requirement? A set of code word is said to be error correcting force if the minimum distance between the code word is more than 2. Here 2 से ज़्यादा हमें चाहिए, मतलब ज़्यादा distance चाहिए, 3 4 जो भी. The number of additional bits should be such that it can point to the location of the erroneous bits. तो कितना number of additional bit हम लोग use करेंगे, ये तय करेगा कि हमें बिट लोकेशंस कैसे वो एड्रेस कर सकते. फॉर एग्जांपल ये कैसे डिसीजन होगा, डिसीजन ऑफ एडिशनल बिट्स, कितना बिट्स चाहिए, ये किस रिलेशन से पता चलेगा. where m is the size of the data, here I have taken m, here it's k. So m is the size of the data and k is the number of additional bits that is to be used. K is the number of additional bits and m is the number of bits. So 2 to the power k greater than equals to m plus k plus 1 होना चाहिए. अगर ऐसा है, इक्वल टू या ग्रेटर देन होता है, तो वो वैलिड कोड वर्ड, दैट इज वी कैन क्रिएट द कोड वर्ड फॉर दैट यूजिंग द रिडंडेंट बिट्स. तो कितना बिट्स चाहिए रिडंडेंट बिट्स, रिडंडेंसी कितना का ऐड करना पड़ेगा, इट विल बी गवर्न्ड बाय दिस रिलेशन. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं कि अगर हमें एक बिट्स का डेटा अगर है तो उसके लिए हमें इस रिलेशन के आधार पे 2 to the power k. सो इट बिकम्स 2 to the power k मतलब कितना चाहिए, 1 plus 1 plus k is 3, 3 plus 1 is 4. तो हमें 2 बिट्स चाहिए. 2 to the power 2 is 4, 4 is equal to 4. सो 2 बिट्स हमें चाहिए. सो कौन सा k में ये रिलेशन सेटिस्फाई कर देगा, दैट विल बी द डिसीजन ऑफ द कितना नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स हमें उस कोड वर्ड को, उस डेटा वर्ड को भेजने के लिए चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर 4 बिट्स है, सो वी नीड 3 बिकॉज m plus 3, m के साथ कितना ऐड करें, अगर m के साथ 2 ऐड करते हैं तो m plus 2, that is 4 plus 2 is 6, 6 plus 1 is 7 and 2 to the power 2 is 2 to the power अगर 2 बिट्स ऐड करते हैं तो 2 is 4, 4 is not greater than equals to 7. फिर अगर 3 ऐड करते हैं so it is 2 to the power 8 and here it is 7, 4 plus 7, 4 plus 3, k is 3 and plus 1 that is 8. So 2 to the power k is greater than equals to 8. Now it is satisfied. So 4 बिट को सेंड करने के लिए हमें 3 बिट का रिडंडेंट बिट ऐड करना पड़ेगा. तो हमारा जो साइज बनेगा कोड वर्ड का वो होगा m plus k. तो पहला स्टेप क्या किया जाता है, k पैरिटी बिट्स आर ऑगमेंटेड टू द m डेटा वर्ड टू मेक ए कोड वर्ड ऑफ साइज m plus k. हमें पता है कि m कितना है तो हमें k कितना लेना है, दिस k विल डिसाइडेड बाय दिस फार्मूला, और उतने बिट्स को हम इसमें ऐड करते हैं. अब ये k बिट्स क्या होंगे, अब ये जो m plus k बिट्स है इनको हम एक पोजीशन नंबर देते हैं. each bit position in the code word with size m plus k is assigned a location value with a decimal number. So from the rightmost end से हम लोग इसको नंबरिंग दे रहे हैं. This is the first location, this is the second, this is the third, इसमें 8 locations, 7 locations we are having because we are having m plus k, that is 4 plus 3, so it is 7. So k parity bits are placed in the positions as the powers of 2. So this position is the power of this position is the power of first position, this is the second position and this is the third position. No, it should have been here. Anyway, so we will see upon it. So this location में the location which are pointing to the powers of 2. So this is 2 to the power 0, this is 2 to the power 1 and it should have been the 2 to the power 2. So यहीं पे हमको पैरिटी बिट्स लगाना है और यहाँ पे हमको पैरिटी चेक, इन लोकेशंस पे हमको पैरिटी चेक एस्टैब्लिश करना है. So कैसे करते हैं, तो देखते हैं इस चीज को. तो मान लेते हैं हमारा जो डेटा वर्ड है दैट इज तो मान लेते हैं हमारा जो डेटा वर्ड है वो है 1 1 0 1 1 0 and 0.
So this is our data word. So definitely this is of the pattern. किस pattern में है? D4, D3, D2 and D1. So we are having 4-bit data. So here our M is, यहाँ पे मेरा M क्या है? M equals to 4. So according to the table, how many number of bits we need? So the relation is 2 to the power A greater than equals to M plus A plus 1. So for ये relation तब satisfy करेगा when A is equals to 3, because 2 to the power 3 is equals to 8 and 8 is greater than equals to 4 plus 3 plus 1, that is 8. So 8 is greater than equals to 8. This is satisfied. So we need 3 number of parity bits to create the code word for the data word 110. This is our data words. अब इसमें हमको parity bit ऐड करना. So what we do? We create the format. वो बोला क्या कि आप format बनाइए किसका, जो कोड वर्ड बनेगा. तो फॉर्मेट क्या? M plus K bits का फॉर्मेट बनेगा. So and number those places using the decimal numbers. So 7 locations we need. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we don't need this. So these are the locations. So अब ये parity bits कहाँ बैठेगा? So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, and this is 7. Parity bits कहाँ बैठेगा? This is 2 to the power 0, this is 2 to the power 1, and this is 2 to the power 2. तो ये locations है हमारा parity bits. बाकी जो locations है वहाँ पे क्या बैठेगा? So it would be so this would be P1, P0, P1, and P2, and this location would be D4, the data bits, the D3, and D2 and D1. So this would be the data bits locations. So अब हमें ये parity bits generate करना है. How the parity bits is to be generated? So we will use 3 parity bits, P0, P1, and P2. So what are the combinations that the parity bits can have? We can have 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, sorry, 1, 0, 1, 1, 1, 0, and 1, 1, 1. So we are having 8 combinations, out of which the first one is used. We will talk about it, why it is not used. तो हम लोग यूज नहीं करते, तो बाद में हम लोग देखेंगे क्या इसका रूल है. So where is the parity? कहाँ पे? अगर हमको P1 ये कैसे काम करता है कि अगर मुझे P0 का parity बनाना है, so the parity is at location. These are the location numbers. So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, and 6, and 7. So P0 कहाँ पे है? So this is 1, 3, 5, and 7. So अगर P0 का parity मुझे बनाना है, it is of the 1 XOR 3 XOR 5 और XOR 7. मतलब इन लोकेशंस P0 का parity अगर मुझे बनाना है, इंक्लूडिंग द parity bit, P0 को लेते हुए अगर P0 पोजीशन मुझे parity सेट करना है, that is P0 is for parity, तो डेटा वर्ड के किसी पर्टिकुलर लोकेशंस का parity हो वहाँ पे मैपिंग रहेगा. तो P0 को लेते हुए डेटा वर्ड्स का किस किस लोकेशन पे पैरिटी P0 में आएगा. सो वो ये बता रहा है कि 1, 3, 5 एंड 7 लोकेशन से हमको लेना है. सो 1 पे क्या है, अगर मान लो अब हमारा जो एग्जांपल है वहाँ पे एग्जांपल.
हमारा एग्जांपल है 1 1 1 0 0. सो अगर इसको सेट करें हम अकॉर्डिंग टू द कोड वर्ड सेट, so it is 1, this is 1 and this is 0 and this is 0. ये लोकेशन खाली है, ये लोकेशन खाली है और ये लोकेशन खाली है. दैट इज P0 P1 एंड P2 मेरा खाली है. दिस इज P1 P2 P3 P4. अब इस लोकेशन में कौन सा P0 में कौन सा पैरिटी आएगा, इंक्लूडिंग P0. तो 1 पोजीशन का और 3 पोजीशन. व्हाट इज 3 पोजीशन? दिस इज 3 पोजीशन. 3 पोजीशन का पैरिटी एंड 5th पोजीशन. 5th पोजीशन कौन सा है? दिस इज 5th पोजीशन. इस पोजीशन का पैरिटी एंड 7th पोजीशन, ये पोजीशन का पैरिटी. सो P0 में पहला क्या है? कुछ नहीं है, खाली है. इट इज 0 and first position, then third position. What is third position? 0. And then 5th position. 5th position is again 0. And then we have 7th position. So एक ही 1 है, इसको अगर इवेंट कराना है तो मुझे यहाँ पे 1 देना पड़ेगा. So I need here 1. अब P1 का, P1 कहाँ पे है? 2 3 and 6 and 7. So P1 is 2 3 XOR 6 XOR 7. So P1 मेरा यहाँ पे है. So P1 का पैरिटी अगर मुझे सेट करना है, if I need to set P1 including P1, तो मुझे कौन से बिट लोकेशन को देखना पड़ेगा? 2 लोकेशन. 2 लोकेशन में खुद P1 है, ठीक, तो वहाँ पे कुछ नहीं है अभी. तीसरा थर्ड लोकेशन में कौन है? 0. तीसरा सो स्टिल नाउ इट इज 0. 6th लोकेशन में कौन है? 1 एंड 7th लोकेशन 1. सो 1 1. सो नथिंग टू बी एडेड बिकॉज हम लोग इवन पैरिटी पे काम कर रहे हैं. सो हियर वी हैव 0. तो 2 मेरा पैरिटी सेट हो गया. नाउ द थर्ड पैरिटी में कौन सा है? सो वी आर हैविंग दिस एंड दिस. So P3 is what? 4 XOR 5 XOR 6 XOR 7. So इस लोकेशंस का XOR का पैरिटी हमारा P3 में जाएगा. तो P3 का अगर बात करें, दैट इज थर्ड पैरिटी बिट में जाएगा. तो 4 5 6 7. व्हाट इज 4? 4 इज कुछ नहीं, and 5 is 0 and what? And 7 is also 1 1. तो ये इवन है, तो यहाँ पे भी मेरा क्या बैठेगा? 0. So these 3 are the parity bits. तो ये हमारा कोड वर्ड सेट हो गया. Once it is done, so we have created our code word. This is our code word. So किसी को कुछ बोलना है तो चैट में मत बोलो. You can say on माइक्रोफोन ओपन करके बोल सकते हो. You can talk. So ये मेरा कोड वर्ड बन गया. अब ये सेंड होगा इससे. सेंडर विल सेंड दिस कोड वर्ड. नाउ मान लेते हैं कि कोई एक बिट, फॉर एग्जांपल हमारा जो थर्ड पोजीशन है, दिस बिट, ये वाला जो बिट है, ये चेंज कर दिया. सो द रिसीव्ड कोड वर्ड becomes 1 1 0 0 1 0 1. ये हमको रिसीव हुआ, जबकि हम भेजे हैं क्या? हम भेजे हैं ये, लेकिन रिसीव हुआ है. दिस लोकेशन दैट इज 1 2 3, थर्ड लोकेशन इज एरोनियस, ये गलत है हमारा. सो इट शुड चेक. सो अब फिर से हम पैरिटी निकालेंगे इसका. सो इसका अगर फिर से हम पैरिटी निकालते हैं, सो P1 at the sender side, P1 will map to, or P0 will map to S0. P1 will map to S1.
and P2 will map to, that is S2. So what is S? They are the syndromes that we use to check whether at which location the error has occurred. So अगर हम S0 निकालेंगे, ये पैटर्न क्या निकलेगा? S0 मतलब क्या है? फिर से P0 का पैटर्न, P0 is mapping to S0, तो 1 3 5 7. So 1 पे क्या है? 1 is 1, 3 is this, and 5 is this, and 7 is this. 5. This is 1 का 1, 3 का 1, that is 0 हो गया. फिर 5 लोकेशन मतलब this, तो अभी भी 0 है, and 7, so it is 1. S0 1 आया. S1 क्या आएगा? S1 is 2 3 6 7. So 2 is 0, 3 is 1. So अभी 1 हुआ. फिर 4 5 6. 6 में 1 है, 1 and 1 0, and 7. 0 and 1 is 1. This is S1. Now P3, and P3 maps to S2. So S2 निकालेंगे, तो S2 के लिए 4 5 6 7. So this is 4, this is 5, this is 6, this is 7. So दो 1 है, so this is even, it is correct. ये जो हमारा पैरिटी मिला, that is at the receiver side, ये चेक किया, and this is called the syndrome. Syndrome ये चेक होगा. Now 0 1 1 कहाँ से मैप करता है? 0 0 1 1 is the locations at third, is mapping to the location at third. So यहाँ से वो जानेगा कि हमारा जो एरर है वो किस पोजीशन में हुआ है, that is at the third position. So error has occurred at third position. ठीक है. So अगर more than one error हो जाता है, then again it is not detected. More than one error, that is burst error के केस में ये सिंगल बिट एरर को ही वो डिटेक्ट कर सकता है. एंड और अगर ज्यादा एरर है, for that we need more complex that is coding scheme. So हमारा वो स्कोप नहीं है, हमारा स्कोप यही है कि हम हैमिंग डिस्टेंस का there are different types of coding, convolution coding and other codings. लेकिन अभी के लिए हम लोगों को हैमिंग डिस्टेंस जानना है, हैमिंग कोड का आधार पे कैसे करते हैं. So सिंगल बिट एरर कोड इस बिट इसका लोकेशन भी पता चल गया, यहाँ पे ये 1 था और एक्चुअल कोड वर्ड जो था वो ये था. So this is our invalid code word. And this is our valid code word. I hope it is clear. किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है. Because we have 6 minutes, so फिर से अगर जरूरत पड़ेगा स्टार्ट करेंगे. Any questions you can ask. माइक ऑन करो, पूछ लो जो भी डाउट्स है. हेलो हेलो. So I hope it is clear. So आगे बढ़ते हैं. सर सेंडर कोड वर्ड कैसे निकाले, समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइए ना. कोड वर्ड कैसे निकाले? यस सर. कोड वर्ड हम पैरिटी बिट से निकाले. देखो यहाँ पे 1357 है, 1357 है ना. अगर मुझे P0 पैरिटी सेट करना है तो P0 कह रहा है कि फर्स्ट लोकेशन जो m+k लोकेशंस आप सेट किए हैं, दैट इज दिस इज m+k, फॉर्मेट जो है मेरा m+k है. ये जो m+k है मतलब 7 का लोकेशन आप बनाए हैं, इसमें हर लोकेशन का लोकेशन नंबर है 1 से लेके 7 तक. तो वो कौन से लोकेशन को लेके पैरिटी जनरेट करेगा. तो एक तो उसका अपना पैरिटी P0 का अपना जो वैल्यू होगा, बाय डिफॉल्ट इट इज 0. ठीक. और कौन से लोकेशंस पे? तो 1 लोकेशंस पे, मतलब इस लोकेशन पे. इस पे तो कुछ नहीं है, P0 का अपना 0 है. फिर थर्ड लोकेशन दैट इज D1 को लेना है, D1 डेटा में D1 को लेना है. फिर 5 को लेना है, दैट इज D2 को लेना है. और फिर 7 को लेना है, दैट इज D7 D4 को लेना है. मतलब ये D4 D2 एंड D1 एंड P0 को लेके मेरा सेट हो रहा है P0.
तो P0 इसको और अगर अच्छी तरह से लिखा जाए तो P0 इज बेसिकली D4 XOR D2 XOR D1 XOR and P0. So including P0, we are creating and the database we are creating the P0 parity. उसी तरह से अगर हम P1 का बात करें तो इसमें क्या है 2 3 6 7, तो 2 लोकेशन को देखना है 2 3 6 7. सो यहाँ पे 2 लोकेशंस कौन सा है, दैट इज P1. सो P1 XOR फिर 3 लोकेशन में कौन सा है P1 XOR एंड 6 लोकेशन में कौन सा है D3 XOR एंड 7, that is P. So P2 parity bits और P1 parity bits and P0 parity bits दोनों जो है वो सेट हो रहा है इंक्लूडिंग द parity bit itself. उसी parity bit को यूज कर रहे हैं और साथ में कुछ स्पेसिफिक डेटा लोकेशन को यूज कर रहे हैं जिससे वो parity सेट हो रहा है. एंड माइंड इट वी आर यूजिंग इवन पैरिटीज. पूरे चीज में हम लोग जो कन्वेंशन यूज किए हैं दैट इज इवन पैरिटी. मतलब जो P1 P0 और P0 P1 और P2 बना रहे हैं वो इवन पैरिटी का आधार बना रहे हैं. मतलब वो जीरो, अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो वो 0 आएगा, अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो वो 1 आएगा. ठीक, उसी तरह से P3 भी हम जनरेट करते हैं अलग अलग डेटा लोकेशंस के आधार पर. आई होप इट इज क्लियर. तो ये मेरा पैरिटी बिट रहा. हर बिट का हर डेटा लोकेशन के साथ संबंध है. कोई एक भी डेटा लोकेशन अगर चेंज कर जाता है या फिर खुद पैरिटी बिट भी चेंज कर जाता है तो वो पैरिटी मैच नहीं करेगा एट S0 S1 and S2. और यहाँ पे जिस लोकेशन पे चेंज करेगा उस लोकेशन के साथ इसका ये जो सेट है डेसिमल नंबर का, जो लोकेशन के हिसाब से हम बनाए हैं पैटर्न के हिसाब से, इससे वो मैच करेगा. एंड फ्रॉम दैट यू विल गेट द सिंड्रोम. द सिंड्रोम से वो पता लगाएगा कि किस लोकेशन में एरर हुआ है, दैट इज थर्ड लोकेशन में एरर हुआ है, तो वो थर्ड बिट को वो चेंज करेगा. थर्ड बिट यहाँ पे मेरा 1 है, दैट मींस इट हैव बीन 0 को चेंज कर देगा. एंड दिस वे द करेक्शन इज डन. इस तरह से करेक्शन कंप्लीट होता है. क्लियर है? क्लियर? यस सर. सो भेज देंगे और once this is done, ये सारा चीज जब हो जाता है then we are having 2 circuits. ये मेरा डेटा वर्ड है, जनरेटर है. ये जनरेट कैसे किया था अभी हम वो वर्किंग वहाँ पे दिखाएं. यूजिंग दैट वे इट जनरेट्स कि अगर मेरा 4 डेटा वर्ड है तो वी नीड 3 पैरिटी बिट्स. यहाँ पे 3 है और m+k इज द कोड वर्ड. ये यहाँ पे पहुंचा, यहीं पे कुछ एरर हो गया है तो चेकर जब चेक करेगा वो सिंड्रोम से पता लगाएगा कि किस लोकेशन में एरर हुआ है, उसको करेक्ट करेगा. फाइनली डेटा वर्ड जो है वहां से डेटा वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा एंड विल डिलीवर टू द अपर लेयर. सो इन दिस वे इन द डेटा लिंक लेयर द करेक्शन इज बीइंग डन, दैट इज एरर करेक्शन इज बीइंग डन यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस. सो हमेशा अगर पूछा जाए क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्रिएट द कोड वर्ड फॉर दिस डेटा वर्ड. अगर ऐसा डेटा वर्ड है आप कोड वर्ड जनरेट कीजिए और दिखाइए कि ये ऐसा अगर डेटा वर्ड रिसीव हो रहा है तो ये कैसे पता लगा रहा है कि करेक्शन कहाँ पे होगा. तो पूरा प्रोसेस वो पूछता है. क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका है. डेटा कभी कभी ऐसा पूछता है कि बताइए कि इस कोड वर्ड को डिटेक्ट करने के लिए कितना नंबर ऑफ बिट्स हमें चाहिए, दैट इज रिटर्न बिट्स हमें कितना चाहिए. यूजिंग दैट रिलेशन यू कैन कैलकुलेट इट. 2 to the power k is greater than equals to m+k+1. So this completes the Hamming distance. So कुछ पूछना है, 1 मिनट बचा हुआ है, पूछो फिर हम लोग